آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایک ایسی سرزمین کی جو دنیا کے 3 الہامی مذاہب کی مقدس ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ ہماری بڑی عید، چھوٹی عید، عیسائیوں کی ایسٹر اور کرسمس اور اسرائیلیوں کے تہوار کیا ہیں، کیوں ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں، یقیناً نہیں معلوم ہوگا۔ انہوں نے قیامت سے قبل 2 اہم کام کرنے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کیا وہ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں؟ ہم پر زنا، شراب، جوا، سور حرام ہے، ان کے لیے کیا حرام ہے اور حلال کیا ہے؟ اپنے سر پر جو ٹوپی پہنتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیوں پہنتے ہیں، سر میں لٹیں کیوں نکالی ہوتی ہیں، دیوار میں سر کیوں مارتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، بحر مردار میں لوگ کیوں نہیں ڈوبتے، اور یہ کس نبی کی امت پر عذاب نازل ہوا تھا، تابوت سکینہ میں کیا تھا اور قیامت میں کتنے سال باقی ہیں۔ پاکستانی کیسے اسرائیل کی سیر کرنے جاتے ہیں، نہیں جانتے نا؟ کیا وجہ ہے پوری دنیا ان کی پوروں کے نیچے ہے؟ دنیا کا سارا میڈیا، بینکنگ نظام، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کے پاس ہیں۔ کون سی ایسی گدڑ سنگی ہے جو اس چھوٹی سی قوم میں جو آج دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ ہم بتائیں گے اس سرزمین کے متعلق وہ باتیں جن سے آج کی نئی نسل نا آشنا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا پڑے گا۔ اسرائیل، جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ یا رات کی تاریکی میں اللہ کی طرف چلنے والا، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو شلوم علیکم کہتے ہیں، جو السلام علیکم سے ملتا جلتا ہے۔ محترم ناظرین، اسرائیل بحیرہ روم کے جنوب مشرقی اور ریڈ سی کے شمالی ساحل پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں لبنان، شمال مغرب میں اردن، شمال مشرق میں شام، مغرب میں فلسطین، جنوب مغرب میں مصر اور غزہ واقع ہیں۔ کیا آپ کو اسرائیل کے 4 شہروں کے نام معلوم ہیں؟ نہیں معلوم؟ جناب والا، انہیں آپ کے ہر شہر کا نام معلوم ہے۔ دنیا بھر میں یہودیوں کی موجودہ تعداد 14 ملین کے لگ بھگ ہے، جن کی اکثریت امریکہ اور اسرائیل میں رہائش پذیر ہے۔ دوستو، اسرائیلی حضرت آدم سے لے کر ملاکی تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان سب کو انبیاء مانتے ہیں، باقی بعد میں آنے والے انبیاء کا انکار کرتے ہیں۔ اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ بجلی نظام شمسی سے حاصل کرنے والا ملک ہے، اور دنیا میں آبادی کے تناسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ بیچلر بھی وہاں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈگری کا مقصد اچھی نوکری، کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لینا ہے، اور اسرائیل میں تب تک اسٹوڈنٹ کو ڈگری نہیں ملتی جب تک وہ کوئی بزنس یا کوئی اپنا آئیڈیا سیل کر کے $10,000 پروفٹ نہیں کما لیتا، اور ہمارے ڈگری ہولڈر سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے آگے کرنا کیا ہے۔ یہودیوں کی مقدس ترین کتاب تلمود کے مطابق دنیا کا یہ فیض 6000 سال پر محیط ہے۔ ان کا سال سپتمبر میں شروع ہوتا ہے، اسے یہ جشن تشری کہتے ہیں۔ عبرانی میں اس دن کو روش ہاشانہ یعنی سال کا سر کہا جاتا ہے۔ ان کے کیلنڈر نے 5789 سال پورے کر لیے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق دنیا کے خاتمے میں اب صرف 221 سال باقی ہیں، اور اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کا ہے۔ یاد رہے، اسرائیلیوں کے لیے 6 کا ہندسہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا ماننا ہے اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں تخلیق کیا ہے، اور اللہ نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے 6 دن انہیں کام کرنے کی اجازت دی، مگر 7ویں دن یعنی یوم السبت ہفتے کے دن ان پر کام کرنے پر پابندی لگا دی۔ آپ اگر اسرائیل کا جھنڈا دیکھیں تو اس پر 6 کونوں والا ستارہ نظر آتا ہے، جسے سٹار آف ڈیوڈ یعنی ستارہ داؤدی کہا جاتا ہے، اور یہ ستارہ ان کی پہچان کہلاتا ہے۔ یہ اپنے بچوں کو کس طرح ٹرین کر رہے ہیں؟ ان کا ماننا ہے کہ ہمارا آنے والا بچہ دنیا کا لیڈر بنے گا، $1 بلین کی کمپنی بنائے گا، بزنس کرے گا۔ نوکری کا کوئی کنسپٹ نہیں۔ ان کے ہاں جب کوئی عورت امید سے ہوتی ہے تو اس کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ میاں بیوی گھر سے ٹی وی، موبائل گیمز دور کر دیتے ہیں، اور دن رات میں میتھ کے کوسچن بول کر حل کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ شطرنج کھیلتے ہیں تاکہ بچے میں شاطرانہ چالیں چلنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اس طرح بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کی سکل ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس گھر میں شور شرابہ تو دور کی بات، سگریٹ تک الاؤ نہیں ہے۔ ڈرائی فروٹس، جوسز کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے بعد اسے تیر اندازی سکھائی جاتی ہے، جس کو سیکھنے کا حکم ہمیں ہے۔ دنیا کی ہر بڑی کمپنی کا ریسرچ سینٹر آج اسرائیل میں ہے۔ آنے والے وقت میں سب سے بڑی جنگ انٹرنیٹ کے ذریعے لڑی جائے گی۔ صرف ایک کلک کے ذریعے پورے ملک کا انٹرنیٹ، سیٹلائٹ لوکیشن سب جیم کر دی جائیں گی۔ وہاں 13 سال کی عمر کے بچوں کو ہیکنگ سکھائی جاتی ہے، وہ اس کے تجربات کرتے رہتے ہیں۔
मोहतरम नाजरीन, आपको बताते चलें, कासम, योना, सबा 3 ऐसे सिटी हैं जिनका पहला नेम कफर है। तिल अबीब तारीखी नाम इसका जुफा है और हम इसे तिल अबीब बोलते हैं। समंदर के किनारे बसाया गया एक निस्बतन नया शहर है जहाँ साहिल समंदर, बुलंदो बाला अमारात और मार्केट्स मौजूद हैं। ये शहर खूबसूरती, तरक्की और सफाई के एतबार से यूरोप के किसी भी शहर से कम नहीं है। नाजरत शहर जिसके बारे में कहा जाता है यहीं जैकब, मैरी और जीसस यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का घर था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत भी इसी शहर में हुई थी। दोस्तों, इसराइल में सबसे बड़ा जश्न का दिन हैप्पी पासोवर यानी ईद फसा का होता है, जो 7 दिनों यानी 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाई जाती है। ये दिन फिरौन से आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। इनकी दूसरी ईद पोरियम कहलाती है। ईरानी बादशाह ने हामान के कहने पर यहूदियों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया, लेकिन हुक्म लेकर जाने वाले ने मलका को बता दिया। इसने हामान को ही कत्ल करवा दिया, इसलिए इसको योम निजात के तौर पर मनाते हैं और ये हर साल के आखिरी महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। इनका तीसरा त्यौहार रोश हाशाना है। इसको जश्न नौरोज भी कहते हैं। इस दिन सुबह से शाम तक नरसंगे फूके जाते हैं। रोटी और फल को शहद में डुबोकर खाया जाता है। इसराइल में दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन शरह है, जहाँ 55% खवातीन मर्दों की जगह काम करती हैं। इसराइल इन ममालिक की लिस्ट में शामिल है जहाँ मीठे पानी की कमी है, लेकिन आज ये दुनिया में सबसे बड़ा समुद्री पानी को साफ करने का प्लांट इसराइल में ही है। होली चर्च ऑफ स्पुल्चर कब्र को कहते हैं। ईसाइयों के नज़दीक ये पाकीज़ा तरीन जगह है, जहां उनके ख्याल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाइड किया गया था, लेकिन कुरान करीम के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जिंदा उठा लिया गया था, जबकि उनकी जगह किसी और को हम शक्ल बना दिया गया था, जिसे क्रूसिफाइड कर दिया गया। ईसाई रिवायात के मुताबिक इस चर्च की पहली मंजर पर वाक़े पहाड़ी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। इसके बाद इनका जिस्म पहाड़ी से नीचे लाया गया और नीचे मौजूद इंसानी जिस्म की तरह लंबी चौड़ी पत्थर की सिल पर इनके जिस्म पर तेल लगाया गया। ये पत्थर आज भी यहाँ मौजूद है, जिसे ईसाई ज़ायरीन चूमते हैं। यहाँ से थोड़े फासले पर दफन करने के लिए ले जाया गया। दफन करने से पहले ही उनका जिस्म यहाँ से ऊपर आसमानों की तरफ गायब हो गया था। तल अवीव में हर मंगल की रात रूलर बिल्डिंग पार्टी होती है। इसराइल दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ मूवेबल घर बनाने का रुझान बहुत ज़्यादा है। दुनिया का सबसे पहला सेल फोन मोटरोला ने इसराइल में ही बनाया था। इसराइल की गाय दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देती हैं। जेरूसलम या यरूशलम या अल कुद्स दुनिया का वाहिद शहर है जिसे मुसलमान, ईसाई और यहूदी मुक़द्दस मानते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि यही वो जगह है कि जहाँ इंसान की तख्लीक हुई थी और यहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की तैयारी की थी। मसीही समझते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं मसलूब किया गया था और यहीं इनका सबसे मुक़द्दस कलीसा बाकी है। मुसलमानों के अकीदा के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाने से कबल यहीं 1,24,000 अम्बिया की इमामत कराई थी। यह अम्बिया कराम का शहर है जिसके बारे में कहा जाता है इसकी बुनियाद 4000 साल कबल मसीह रखी गई। फरवरी 638 ईस्वी में मुसलमानों ने बगैर जंग किए यरूशलेम फतह कर लिया था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु यरूशलेम की चाबियां लेने आए तो ईसाइयों के पैट्री और सैफरोन ने चर्च दिखाना शुरू कर दिया। इसी दौरान नमाज का वक्त हो गया। सैफरोन ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को चर्च के अंदर एक जगह नमाज अदा करने की दावत दी, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे बाद मुसलमान जहाँ ही नमाज पढ़ना न शुरू कर दी। उन्होंने एक पत्थर जोर से चर्च के बाहर फेंका और जहाँ पत्थर गिरा वहाँ उन्होंने नमाज पढ़ ली और वहीं आज मस्जिद उमर है। इसकी दीवार के साथ संगे मरमर की एक तख्ती पर ईसाइयों और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान होने वाला मुआहदा अरबी ज़बान में लिखा हुआ आज भी मिलता है। यहाँ पहला चर्च 66 ईस्वी में बना था जिसे रोमन बादशाह हादरियान ने गिरवा का टेम्पल तामीर करवा दिया। 326 ईस्वी में यहूदियत से ईसाईयत कबूल करने वाले बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने यहाँ पर एक चर्च तामीर कराया। बाद में ईसाई फिरके इस पर कब्जे के लिए लड़ते रहे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस लड़ाई का ये हल निकाला। चर्च के मरकजी दरवाजे की चाबियां नज़दीक रहने वाले 2 मुसलमान खानदानों के हवाले कर दी। वो हर रोज़ सुबह शाम चर्च का दरवाज़ा खोलते और बंद करते थे
क्योंकि कोई भी ईसाई फिरका इस सिलसिले में दूसरे पर एतबार करने को तैयार नहीं था। मौजूदा दौर में भी इन खानदानों का एक फर्द इसराइली सिपाहियों के साथ इस चर्च का दरवाज़ा खोलने और बंद करने आता है। बहीरे रूम के साहिल पर वाक़ई हैफा बंदरगाह मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह है। यहाँ का मौसम एशियन ममालिक की तरह खुश्क और गर्मी पड़ती है। टोक्यो न्यूयॉर्क के बाद सबसे ज़्यादा सुशी तिल अवीव के होटलों में मिलती है। इसराइल का लुद ऐसा शहर है जिसके बारे में अहादीस हैं, यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का खात्मा करेंगे। तिल अवीव की डजन गोफ स्ट्रीट इसराइल की सबसे महंगी गली कहलाती है। मोहतरम नाजरीन, आप यकीनन ये जानना चाहेंगे ये कैसे इबादत करते हैं। इनका वुज़ू 3 से 4 मरतबा दोनों हाथों को बारी बारी पानी से धोना होता है। ये अपने सर पर कैप लेते हैं जिसे यामरकल या किफा कहते हैं। माथे पर और बाएं बाजू पर चमड़े का टिफलन बॉक्स बांधते हैं। कंधों पर शाल लेते हैं जिसे तालित कहते हैं। यहूदी दीवार गिरिया के पास आकर इबादत और तिलावत करते हैं, रोते हैं, दुआएं मांगते हैं और बैरून मुमालिक से आने वाले अपने दोस्तों के दिए हुए दुआया खतूत लेकर आते हैं जो अल्लाह के नाम पर होते हैं। वो रुक के इस दीवार की ईंटों के दरमियान दर्जों में फंसा दिए जाते हैं और ये नमाज भी पढ़ते हैं। हाथ बांध कर क्याम की हालत में ऊंची आवाज में तौरात की तिलावत करते हैं। टोपी पर हाथ रख कर सजदा करते हैं और आखिरी रकत में रुकू की हालत में पहले बाईं जानब फिर दाईं जानब सलाम फेरते हैं और फिर 2 जानों बैठकर दुआ मांगते हैं और आखिर में जमीन पर उल्टे लेट जाते हैं, फिर बैठकर दुआ मांगते हैं। मोहतरम नाजरीन, दुनिया की 3000 से जायद बड़ी कंपनियों की इब्तिदा इसराइल से हुई थी। इसराइल में मॉडल बनने से पहले अपना हेल्थ कार्ड और अपना वजन बताना जरूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी हीरों की होलसेल मार्केट इसराइल में है जिसे बतौर करेंसी भी कबूल किया जाता है। मोहतरम नाजरीन, पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक इसराइल जाना गैर कानूनी है, लेकिन इसराइली कवानीन के मुताबिक पाकिस्तानी इसराइल आ सकते हैं। मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा या अल कुदस और यहाँ जाना और नमाज पढ़ना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है। लोग इसराइल जाने के लिए 2 रास्ते इख्तियार करते हैं, एक ज़मीनी और दूसरा फ़िज़ाई। इसराइल का वीज़ा लेने के लिए सियाहों को ओमान, आज़रबाईजान, कीनिया, म्यांमार, घाना या नेपाल में जाना होता है। ज़मीनी रास्ते से इसराइल जाने के लिए सियाह 2 मुमालिक उर्दन और मिस्र का सहारा लेते हैं। मिस्र या उर्दन पहुंचने पर सियाह वहां से इसराइली सफारतखाने से आर्जी सफरी दस्तावेज पर इसराइली बॉर्डर पर आते हैं। इस पर दखूल की मोहर लगाई जाती है, असल पासपोर्ट जमा कर लिए जाते हैं। इसराइली हुकाम ये तमाम सबूत जमा करते रहते हैं और साल के आखिर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवा देते हैं कि देखें ये हमें एक मुल्क के तौर पर कबूल नहीं करते, लेकिन इसके शहरी हर साल वीज़ा लेकर हमारे मुल्क आते हैं। एक यूरोपीय निषाद पाकिस्तानी जब इसराइल गया तो उससे पूछा गया तुम्हारे दादा का नाम क्या है, तुम इधर क्या करने आए हो। इसकी उर्दू वेबसाइट थी, उसे पिछले 2 साल में 6000 दफ़ा इसराइल में पढ़ा जा चुका है। हालांकि इसराइल में बज़ाहिर कोई उर्दू समझने वाला मौजूद नहीं है। आप खुद सोच लें उनकी किधर किधर नजर है, और हम अभी तक कमेंट्स में 5 लिख कर मक्खी के उड़ने का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया का हर यहूदी इसराइल का शहरी है। इसराइल दुनिया भर में वाहिद मुल्क है जिसमें ख़वातीन के लिए फौजी खिदमात ज़रूरी हैं। इसराइल में किसी भी शख्स को ज़मीन नहीं बेची जाती, बल्कि उसे लीज पर दिया जाता है। इसराइल में फी कस के एतबार से सबसे ज़्यादा किताबें छपती हैं। इसराइली दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रूट खाने वाले माने जाते हैं। डेड सी यानी बहरे मुर्दार, अरब उसे बहरे मैयत कहते हैं। ये कदीम ज़माने में बहरे लूत भी कहलाता था। ये दुनिया का पस्त तरीन मकाम है, सतह समुंदर से 1300 फुट नीचे है। डेड सी दुनिया का वाहिद समंदर है जिसमें किसी किस्म की हयात नहीं पाई जाती। इसमें मछली है और ना ही कोई पौधा, हत्ता कि इस पर काई तक नहीं उगती। आपको इस पर मौज भी दिखाई नहीं देती। इस पर कश्ती, मोटर बोट, बहरी जहाज नहीं चल सकते, क्योंकि डेड सी में नमकियात की मिकदार 23 से 25% है और आम समंदर में ये मिकदार 4 से 6% होती है। चुनाचे बाहरी नमकियात की वजह से डेड सी में जिंदगी मुमकिन है और ना ही कश्ती रानी। आप जो ही समंदर में कश्ती डालते हैं ये फौरन उल्ट जाती है। ये दुनिया का वाहिद समंदर है जिसमें कोई जिंदा शख्स और जानवर डूब नहीं सकता। इसका जनूब मशरकी इलाका उर्दन और मगरबी इलाका इसराइल के पास है। ये समंदर दरअसल अल्लाह ताला के अज़ाब का नतीजा है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की 5 बस्तियां जिसमें सद्दूम, अमूरा और ज़गर ज्यादा मशहूर थी, इस जगह आबाद थी। ये हम जिन्स परस्ती के शिकार थे। अल्लाह ने उन पर अजाब नाज़िल किया।
अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती छोड़ने और पीछे मुड़कर ना देखने का हुक्म दिया। इनकी बीवी ने हुक्म की नाफरमानी की और उसे पत्थर बना दिया गया और इसका मुजस्समा आज भी इबरत का निशान है। बैतुल मक़दस इससे सिर्फ 15 मील के फासले पर है। इनकी करेंसी शैकल है जो पाकिस्तानी 39.31 रुपयों और इंडियन 19.31 रुपयों के बराबर है। इसराइली नोटों पर वर्टिकल तस्वीरें छापने की बजाय हॉरिजॉन्टल छापी जाती हैं और इन नोटों पर अंधों की पहचान के लिए निशानियां रखी गई हैं। मनोरा इसराइल का सरकारी निशान और यहूदियों की मुक़द्दस मजहबी अलामत है। ये 6 शाखों वाला एक शमादान है। ये झाड़ी मनोरा से माखूज है। यह अलामत उनकी इबादत गाहों में भी मौजूद होती है। रूमियों ने 70 ईस्वी में जब यरूशलेम में हैकले सुलेमानी को बर्बाद किया तो इसमें मौजूद मनोरा को अपनी फतह की यादगार के तौर पर ढूंढ ले गए। मनोरा झाड़ी फ़लस्तीन में आम पाई जाती है। इसराइल में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम नोम है जिसका मतलब है खुशगवार। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा गरकत दरख्त लगाने वाला मुल्क इसराइल है क्योंकि इसका जिक्र हमारी अहादीस में है। इनकी लैंग्वेज है हिब्रो अबरानी जो 3000 साल पुरानी जुबान है। मॉडर्न लैंग्वेज इनकी यिडिश कहलाती है और दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान अरबी है। इनकी मुकद्दस किताबों के नाम तनख, तौरात, बाइबल, तनायम, कुबाला, खलाखा और तलमूद है। ये अंबिया को किन नामों से पुकारते हैं? आदम अलैहिस्सलाम को एडम, नूह अलैहिस्सलाम को नोहा, याकूब अलैहिस्सलाम को जैकब, इसहाक अलैहिस्सलाम को एजक, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को गैब्रिएल और सुलेमान अलैहिस्सलाम को सोलोमन और दाऊद अलैहिस्सलाम को डेविड, मूसा अलैहिस्सलाम को मोसेस, ईसा अलैहिस्सलाम को जीसस कहते हैं। मोहतरम नाजरीन, आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें कि बिल्ली आपको नहीं खाएगी या टटीरी की तरह टांगे ऊपर करके टटाटी का शोर मचाएं कि आपने आसमान को सर पर उठा रखा है तो मसले हल नहीं होंगे। वो चांद पर दुनिया को बसाने में लगे हैं और हमें अभी तक चांद ही नहीं दिखाई देता। इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपनी ज़रूरत का 100% खुद उगाता है और सबसे कम पानी से फसलें उगाने की टेक्नोलॉजी भी इन्हीं के पास है। हालांकि हमें कहा गया है कि पानी कम इस्तेमाल करें, भले तुम नहर पर ही क्यों ना बैठे हो। हुक्म हमें है, अमल वो कर रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, मशरकी और वस्ती यूरोप में बसने वाले अश्कनाजी यहूदी कहलाते हैं और इनका सबसे बड़ा फिरका ऑर्थोडॉक्स है जो कट्टर ख्यालात का मालिक है और इसके बाद अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स आते हैं जो दीन में किसी किस्म का रद्दोबदल पसंद नहीं करते। काले हैट और काले लंबे कोट पहनते हैं और सैडों पर लिटे निकालते हैं। दाढ़ी और मूंछें नहीं काटते। इनके लिबास को जलबिया कहा जाता है। बहीरे रूम के मुमालिक में बसने वाले सवातरी यहूदी और एशियन मुमालिक में बसने वालों को मजराजी यहूदी कहा जाता है। इनकी इबादत गाह को सिनेगॉग कहते हैं और इनकी इबादत का दिन जुमा की रात को शुरू होकर हफ्ता की शाम तक का होता है और इसे इस यौम शबात कहते हैं और इस दिन मातज़ा रोटी खाते हैं और इस दिन की मुनासबत से बनाए जाने वाले खानों को कुचाला कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जुमरात वाले दिन ख़त्म शरीक कहा जाता है। इनके स्कॉलर्स को रिब्बी कहा जाता है। इनके नज़दीक क़यामत कायम होने में सिर्फ 221 साल रह गए हैं। इसराइलियों ने क़यामत से कबल 2 अहम काम करने हैं: ताबूत सकीना की तलाश और हैकले सुलेमानी की तामीर। ये कहानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थीं, हजरत हाजरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा और हजरत सारा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा। 40 साल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में रहाइश पजीर रहे। आपने खाना काबा तामीर किया और आप वापस फ़लस्तीन तशरीफ ले गए और आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ अल्लाह ताला का दूसरा घर बैतुल मुक़द्दस तामीर फरमाया। खाना काबा और बैतुल मक़दस की तामीर के दरमियान 40 साल का फ़र्क था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन में इंतकाल फरमाया। आपका रोज़ा मुबारक यरूशलेम के मज़ाफ़ात में है। ये इलाका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुनासबत से हैबरून या अल खलील कहलाता है। बनी इसराइल हजरत याकूब की औलाद हैं। ये लोग कहत का शिकार हुए, मिस्र की तरफ नकल मकानी की, फ़िरौन की गुलामी में गए, सैकड़ों साल ज़िल्लत बर्दाश्त की और 3300 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मैयत में फ़लस्तीन वापस आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 साल कबल मसीह में यरूशलेम फतह किया और इसे अपनी सल्तनत किंगडम ऑफ डेविड का दारुल हुकूमत बनाया। अपने लिए एक शानदार महल तामीर करवाया। दिल में ख्याल आया, महल में रहता हूँ। ताबूत सकीना आज भी खैमे में रखा हुआ होता है। इस ताबूत में पत्थर की वो तख्तियां भी थीं जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोह तूर पर उतारी थी। इन तख्तियों पर अल्लाह के 10 अहकामात दर्ज थे।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और वो बर्तन भी था जिससे मन्नो सलवा निकलता था। जंगों में इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते थे और इसकी मदद से फतह हासिल कर लिया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल तामीर कराना शुरू किया। आपके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह तामीर जारी रखी। हजरत सुलेमान के दौर में बड़े बड़े जादूगर भी थे। आपने अल्लाह ताला के हुक्म पर इन तमाम जादूगरों को कत्ल कर दिया और उनके जादू के नुस्खों को भी संदूक में बंद करके कहीं छुपा दिया। यहूदी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मबद को हैकल सुलेमानी कहते हैं। ये हैकल 586 कबल मसीह में बाबल के बादशाह बख्त नसर ने तबाह कर दिया था। ताहम इसने हैकल सुलेमानी की बैरूनी दीवार छोड़ दी थी। आज भी यहूदी इस दिन मातम करते हैं, जिसे तशाबियो भी कहा जाता है। यहूदी इस दीवार को कोतल जबकि मुसलमान दीवार गिरिया कहते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने बहैसियत उम्मत आखिरी मोहलत के तौर पर बनी इसराइल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर रसूल को मबऊस फरमाया और यहूदियों ने इनकी सबसे ज्यादा मुखालफत की। इन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। असल में यहूदी अपने मसीहा के इंतजार में थे जो आकर इन्हें दोबारा पहले वाली शान और शौकत अता करता। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दीन की तजदीद नौ शुरू की। उन्होंने आपके कत्ल की साजिश कर डाली। अल्लाह ताला ने इस आफताब रिसालत को उठा लिया और इस जुर्म अजीम के पादाश में बनी इसराइल को मनसबे अमामत से माजूल करके एक जबरदस्त सजा देने का फैसला किया। चुनाचे इस वाक़े के थोड़े अरसे बाद यहूदियों ने रूमियों के खिलाफ बगावत की, जिसके नतीजे में रूमी हुक्मरान टेटस ने यरूशलेम पर हमला करके पूरी आबादी को तहस नहस कर डाला और यहूदियों को इस तरह फलस्तीन से निकाला कि वो 2000 साल तक वहां वापस न लौट सके। जब बरतानिया ने फलस्तीन पर कब्जा किया तो सारी दुनिया से यहूदी इकट्ठे करके इस जगह दोबारा बसा दिए, जिससे एक नजायज यहूदी रियासत का क़याम अमल में लाया गया। ताबूत सकीना कहाँ है किसी इंसान को नहीं मालूम। यहूदी इस ताबूत को हासिल करने के लिए पूरे कुर्राए अर्ज को खोद डालना चाहते हैं। मुहतरम नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए लाइक के बटन को दबा दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।